Hello friends and my dear student, welcome to my channel Butterfly Study. Today we are learn unit number 3.5, The Red-Headed League. Sherlock Holmes is probably the most famous and most popular private detective in the world of detective stories and novels. शेरलॉक होम्स जो हैं ये बहुत प्रसिद्ध और बहुत पॉपुलर प्राइवेट डिटेक्टिव विश्व के इनकी बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास हैं. ही इज़ नोन फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन. वे अपने सूक्ष्म निरीक्षण, नॉलेज ऑफ द मेनी फील्ड्स, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी, एंड एबिलिटी टू मेक एक्यूरेट गेसेस. सर आर्थर Conan Doyle was the doctor of profession, but he is the best known for his crime fiction. The Red-Headed League was one of the favorite story. Red-Headed League उनकी इन कहानियों में से एक. Be a writer, एक लेखक के रूप में. We come to know about many types of crime. हम बहुत सारे क्राइम के बारे में जानते हैं, अपराधों के बारे में जानते हैं. टाइप्स ऑफ क्राइम थ्रू द मास मीडिया, विभिन्न माध्यमों के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा हमें अलग अलग तरह की जो अपराध के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है. वी हियर, सुनते हैं, पढ़ते हैं अबाउट थेफ्ट, चोरी, बर्गलरी, बहकलाना फुसलाना, रॉबरी, डकैती, मर्डर, kidnapping, blackmailing. The list can be very long. It is important to detect crime, find an criminal and prove that he is guilty so that justice is done. People of all ages like to read about the story of crime and detection. How a daring, intelligent policeman or detective catches a criminal. किस प्रकार से बुद्धिमान पुलिस वाले और खोजी व्यक्ति क्रिमिनल को ढूंढते हैं. हैव यू रीड सच स्टोरी, इस प्रकार की स्टोरी तुम पढ़ते हो. आर सीन सच प्रोग्राम, या इस प्रकार के प्रोग्राम टीवी पर भी देखते हो. जैसे कौन सा प्रोग्राम आता है टीवी पर? डिटेक्टिव प्रोग्राम, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, दिस टाइप ऑफ टीवी सीरियल्स. Would you like to write such a story? क्या तुम इस प्रकार की कहानी लिखना पसंद करोगे? Think of interesting titles for mystery stories, as the case of, the mystery of, the adventure of, etc. From groups and try to write on an outline of a detective story in English. As a group activity, discuss and note down the characters, the events, and how your hero/heroine, who is a detective, solve the mystery. Encourage the student to ask different questions in English. The focus here is on ideas rather than on accuracy. The student may use their mother tongue in the course of the discussion, but the written presentation should be in English. Second, divide the class into two groups. Each group write the description of crime. Exchange your description, then prepare a set of probing questions to make inquiries about, investigate the crime, demonstrate the question and answer in the classroom. Now start The Red-Headed League. This is story part 1, Mr. Wilson's story. When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with a fairy red hair. Fairy red hair मिलता होता है आग के जैसा लाल कलर वाला. Holmes introduced me to the visitor, Mr. Jabez Wilson. होम्स ने मुझसे एक
व्यक्ति से मिलवाया जिसका नाम था जावेद विल्सन। ही वॉज पान ब्रोकर। होम्स asked him to repeat his story for me. He began by showing as an advertisement in a newspaper. It read as follows. इस प्रकार से पेपर में एक एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ था, उसको उन्होंने दिखाया। टू द रेड हेडेड लीग, देयर इज ए वैकेंसी फॉर मेंबर, वहाँ पे जगह खाली है। लीगल, द लीग एंड द सैलरी इज £4 a week for nominal services. Red-headed men may apply person on Monday at 11 o'clock to Duncan Ross at the office of the league, 7 Fleet Street. ये एड्रेस दिया हुआ है। आके मिले जो इंटरेस्टेड हो उनको प्रति पर वीक £4 सैलरी मिलेगी। The advertisement has appeared in newspaper 2 months ago. यह 2 महीने पहले न्यूज़पेपर में आया था जो एडवर्टीजमेंट था। मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग हैज शोन इट टू हिम। मिस्टर विल्सन liked his assistant Spaulding. He was smart, efficient, and worked for only half the normal wages. But the assistant also had his faults. Every now and then he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his hobby. उनका ये हॉबी था, फोटो डेवलप करना, फोटोग्राफी करना। Spaulding shows the advertisement to Mr. Wilson and explained to him. उसके बारे में बताना शुरू किया, एडवर्टीजमेंट के बारे में। एक्सप्लेन उसके बारे में एक्सप्लेन किया टू हिम दैट एन अमेरिकन मिलेनियर, अमेरिकन करोड़पति मिस्टर एजाकिया हॉपकिंस हैड फाउंडेड द फेमस रेड हेडेड लीग टू हेल्प ऑल रेड हेड्स like himself. Spaulding urged the Mr. Wilson to apply for the job. So the two of them went to address given in the advertisement. Fleet Street was full of the red-headed people. जितने भी लोगों का रेड हेड वाले लोग थे, इनके भी बाल थोड़े रेड कलर के थे, ऐसे लोगों से पूरी गली भरी हुई थी। फ्लीट स्ट्रीट, वो पता दिया गया था ना उसको, वहीं पर सबको मिलने के लिए बुलाया गया था। फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। मिस्टर विल्सन थॉट दैट विद सो मच कंपटीशन, मिस्टर विल्सन सोचते थे कि यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, बड़ी प्रतियोगिता है यहाँ पे। एज वुड नॉट गेट द जॉब, तो उनको तो जॉब मिलेगी नहीं। ही वांटेड टू गो बैक, वो वापस चले गए। बट स्पाउल्डिंग पुश्ड थ्रू, वो वापस जाना चाहते थे, लेकिन स्पाउल्डिंग पुश्ड थ्रू द क्राउड टू लुक मिस्टर विल्सन टू द ऑफिस, क्योंकि उनका जो सहयोगी था स्पाउल्डिंग, वो उनको पुश करके ऑफिस के सामने तक ले गया। देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस, कोई नहीं था इन द ऑफिस, बट अ कपल ऑफ चेयर्स एंड अ टेबल, वहाँ 2 कुर्सी और एक टेबल रखा हुआ था। A red-headed man sat behind the table. टेबल के पीछे एक आदमी बैठा हुआ था। He was Mr. Duncan Ross, वो डंकन रॉस था। A representative of Red-Headed League, वह Red-Headed League का रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था। He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. उसने अनाउंस किया कि मिस्टर विल्सन को बोला कि आप इस जॉब के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं। He shook hand with Mr. Wilson, congratulated him and told all other candidates to go back. ने मिस्टर विल्सन को कांग्रेचुलेसन दिया, बधाई दिया, और अन्य जो लोग थे, उम्मीदवार थे, आए थे लोग नौकरी के लिए, उन सभी लोगों को वापस जाने को कहा। Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2. उनको 10 बजे से 2 बजे तक आना था, उसके बारे में बताया। If he left the office, he would lose the job.
Spaulding assured Mr. Wilson that would look after Mr. Wilson's business in his absence. तो मिस्टर विल्सन का जो बिजनेस था उनके एब्सेंट में स्पाउल्डिंग जो है उनके बिजनेस को देखता था. द पे वाज फिक्स्ड एट £4 एट वीक. हफ्ते में 4 पाउंड मिलना तय हुआ. एंड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन. मिस्टर विल्सन ने पूछा काम क्या है. यू हैव टू कॉपी आउट द एक्सक्लोपीडिया ब्रिटानिका. द पे वाज वेरी गुड. अच्छी पेमेंट थी, अच्छा पगार था, अच्छी तनख्वाह थी. एंड द वर्क वाज लाइट. और काम जो है इतना हल्का. मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब. उन्होंने उस जॉब को, नौकरी को उन्होंने स्वीकार कर लिया. एंड बिगिन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे. मिस्टर डंकन रॉस वाज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस. उन्होंने अपना काम अच्छे ढंग से किया और वो ऑफिस से कहीं बाहर गए नहीं. ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट विद द लेटर ए. मिस्टर विल्सन रोट diligently for 4 hours without leaving his place. और वो लिखते रहे अपना जगह बिना छोड़े हुए. मिस्टर रॉस will drop in from time to time to see that all was right with Mr. Wilson. At 2 o'clock he bade Mr. Wilson good day and locked the door of the office. उसके बाद उस ऑफिस का डोर बंद कर दिया गया. जैसे ही 2 बजा. Drop in time to time to see was right with Mr. Wilson at 2 o'clock. This went on day after day. Mr. Holmes said Mr. Wilson, and on Saturday I got my salary. It was the same next week, and the same the week after. A few days Mr. Duncan Ross come in once in a while, and after time he did not come in at all. Mr. Wilson continued. 8 weeks had passed like this. इस तरह से काम करते हुए मिस्टर विल्सन को 8 हफ्ते हो गए. And I had written about aborts, archery, etc. and hope that I might get on the B soon. अभी A खत्म समाप्त हो गया, अभी B से शुरू करना है. And then suddenly the whole business came to an end. To an end. Holmes asked. Yes sir. This morning, इस सुबह में, I went to my work as usual at 10 o'clock. But the door was shut and locked with the little note nailed on it. It said, "The Red League is dissolved October 9, 1880." I was shocked. I did not know what to do. मुझे पता ही नहीं क्यों ये सब बंद हो गया. But Mr. Wilson went on with his story. वो अपनी स्टोरी पर चलते रहे, लिखते रहे. I made inquiries at the nearby offices, but none of them knew anything about the league. वो जब वहाँ पे बंद हुआ, ताला लग गया, तो उनको परेशानी. मिस्टर विल्सन क्यों ऐसा क्या हुआ, कुछ बताया नहीं, क्यों सब ऑफिस बंद हो गई. उन्होंने आसपास में पूछा, लीग के बारे में पूछा. द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम. जो भाड़े से लिया गया था रूम, वो गलत नाम से लिया गया था. आई वेंट होम एंड आस्क माई असिस्टेंट स्पॉल्डिंग. मैं घर गया और अपने असिस्टेंट स्पॉल्डिंग से इसके बारे में सलाह चाहा. बट ही कुड नॉट हेल्प मी एट एनी वे. और वह मेरी कोई सहायता किसी तरह से नहीं कर सका. आई वॉन्ट टू फाइंड अबाउट द लीग मिस्टर होम्स, हु दे आर, द व्हाई दे प्लेड दिस प्रैंक अपॉन मी. द होल थिंग इज a mystery. That is why I came to you. I have feared a lot about you. Holmes found Mr. Wilson's story. तो वो गए सब होम्स के बारे में, होम्स को उन्होंने बताया. मिस्टर विल्सन ने ये सारी कहानी होम्स को बताया. तो होम्स ने उनकी सारी कहानी सुनी. स्टोरी वेरी अनयूजुअल. ही आस्क्ड मिस्टर विल्सन, दिस असिस्टेंट ऑफ योर्स हु फर्स्ट कॉल्ड योर अटेंशन टू द एडवर्टीजमेंट, व्हाट इज ही लाइक? स्मॉल, स्टाउट, with no hair on his face. He has a white splash on acid on his forehead. I thought as much, said Mr. Holmes. Is he still with you? Oh yes sir. That will do.
Mr. Wilson, I can give you my opinion on this subject. तो उन्होंने इसके बारे में अपना ओपिनियन मांगा. एंड गिव मी ओपिनियन ऑन माई सब्जेक्ट इन डे आर टू अ डे, 1-2 दिन में बताता हूँ. टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे है. एंड बाई मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन, मैं मंडे तक इसके बारे में कुछ निष्कर्ष पर पहुँचूँगा. तो इस प्रकार से हमारा ये इस पाठ का पहला भाग समाप्त होता है. इस पहले भाग का वर्कशॉप हम अगले वीडियो में देंगे. थैंक यू.